next video on linear programming, miscellaneous exercise. Examples of this exercise may be taken of your own. In this case, one diet problem is there, but this is a question of your bounded functions, so that you have to try. And the linear constants are already there in example number 9, and same with the question number 1, exercise, miscellaneous exercise, same as example number 9, but you have to find maximum value. In examples you have to find out the minimum, but here you have to find out the maximum. Same questions हैं. क्वेश्चन नंबर 10 मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम्स हैं दैट यू कैन डू. एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, total 3 questions are there. One is in example, 2 is in exercise. I will take the question from the exercise, example you will take of your own. Now second questions, miscellaneous exercise, and third are unbounded functions. So in this video we are not discussing the unbounded, because this time unbounded function is not in your syllabus. This is the deleted portions. Although the question is not tough, but why to put extra efforts to do the unbounded questions. Now question number 4. A manufacturer makes 2 types of toys A and B. 3 machines are needed for this purpose, and the time in minutes are required for each toy of the machine is given below. Each machine is available for maximum of 6 hours per day. Maximum of 6 hours per day. If the profit on each toys are given, show that 15 toys of type A and 30 toys of type B be manufactured in the day to get maximum profit. मतलब point is given to you, आपको आंसर्स वहाँ से चाहिए. I have written let the manufacturer makes toy of type A is X and B Y. Makes toys of type A. Number of toys. Manufacturer makes number of toys of type A is X, number of toys B. टाइप ऑफ टॉयज ये मैंने ए और बी ले लिए. मैन्युफैक्चर इन मिनट्स है, मीन्स मशीन जो है वो आपके पास इस टाइप से ये 3 मशीन्स हैं. फर्स्ट मशीन्स पे कोई 12 मिनट है, 18 मिनट, 6 मिनट्स, ये मैंने एक्स लिया, ये इसके ऊपर प्रॉफिट है. ये बी ले लिया मैंने, ये प्रॉफिट है. टोटल टाइम अवेलेबल 6 आवर्स है, मीन 360 मिनट, 360 मिनट, 360 मिनट्स. जेड मैंने टू बी मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट के साथ लेना है. पहली इक्वेशन 12x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 360, 18x इज लेस देन 360 एंड दिस इज लेस देन 360, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0. ग्राफ आप इसका खुद बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स खुद सिलेक्ट करेंगे, एंड ऑल दीज क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड ऑन ग्राफ पेपर्स. ये बात दिमाग में रख लेना. ग्राफ पेपर्स में, क्योंकि यही आपकी प्रैक्टिस है, नॉर्मली बच्चों को लीनियर कांस्टेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं. पहली एक्सरसाइज फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ ग्राफ बनाए थे, इसमें भी हम चाहेंगे तो ग्राफ बना देंगे, बट आपने सिर्फ ग्राफ के अंदर यही पॉइंट रखना ध्यान में कि कौन सा पार्ट शेड करना है. दैट इज क्लियरली कट मेंशन. शेडिंग की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो ये डाउट्स आपके जब आप ग्राफ बनाएंगे इज इक्वल टू के साथ, इक्वेशन के साथ, तो ग्राफ क्लियर हो जाने चाहिए. नेक्स्ट, मैंने सिर्फ इस वीडियोस में आपसे लीनियर कांस्टेंट्स ही बना के दिए हैं.
अब क्वेश्चन नंबर 5, an aeroplane can carry a maximum of 200 passengers. A profit of rupees 1000 is made on executive class ticket. Profit of 600 is made on each economy class ticket. The airline reserve at least 20 seats for executive. At least 4 times as many passengers prefer to travel by economic class. तो इस क्वेश्चन में मैंने लिखा लेट द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट इज एक्स एंड नंबर ऑफ इकोनॉमिक क्लास टिकट इज वाई। एक एक वर्ड को आप ध्यान से देख लीजिए। आई हैव मेंशंस मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी इज 200. इट मीन एक्स प्लस वाई इज लेस देन 200. एट लीस्ट 20 सीट्स एग्जीक्यूटिव क्लास आर रिजर्व्ड. एट लीस्ट मीन कम से कम, एग्जीक्यूटिव में ज्यादा भी जा सकते हैं. इट मीन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20. एट लीस्ट 4 times many passenger prefer to travel by economic class rather than by executive class. 4 times mean एग्जीक्यूटिव क्लास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. मतलब जो इकोनॉमिक्स क्लास के पर्सन हैं वो 4 गुना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो इकोनॉमिक्स क्लास y हो गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? प्रॉफिट ऑन द एग्जीक्यूटिव क्लास इज 1000 रुपीज एंड दिस इज ऑन 600 टू बी मैक्सिमाइज. x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0. चलिए इस क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली थोड़ा सॉल्व कर देता हूं आपके लिए. फर्स्ट इज x प्लस वाई 200. तो दिस में बी द लाइन व्हेन x इज 200 y इज 0. व्हेन दिस इज 0 दिस इज 200. एरो डाले जा सकते हैं. x एक्सिस, this is y axis. Equation is x plus y is less than equal to 200. ये पॉइंट 0 है. 0 0 लेंगे तो आप नीचे की तरफ पोर्शन शेड करेंगे. हाल तो आप रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है. लेकिन अगर जब आप 0 0 इसमें पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 200 विच इज ट्रू. It means shade the portions where the point lies. X is equal to 20. ये लाइन में x is equal to 20 ले रहा हूं. It mean ये पॉइंट आपका 20,0 हो जाएगा. अब x ग्रेटर देन 20 है. 0 0 पॉइंट ले लें. 0 ग्रेटर देन 20 which is false. It means shade the portions where it will not lie. पॉइंट 0 0 लाई नहीं करना चाहिए. y is equal to 4x. इट मीन ओरिजिन से पास करेगी ये लाइन. y is equal to 4x means this line will passes through the origin. So this line may be of this types because if you take x1, y will be 4. So this line will be of this way. This is y is greater than equal to 4x. x is greater than equal to 20. यहाँ पे आपका 0 minus 0 is greater than 20. पर 0 0 नहीं ले सकते बिकॉज ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है. 20,0 ले लो. y माइनस 4x ग्रेटर देन 0. ये 0 माइनस 80 इज ग्रेटर देन 20 विच इज फॉल्स, क्योंकि मैंने पॉइंट कौन सा लिया? ये वाला पॉइंट ले लिया 20,0 विच इज फॉल्स. मीन्स
ऊपर की तरफ शेड करेंगे। कहने का मतलब है ये वाला पोर्शन आपका आ गया, ये पॉइंट आप ए कह दें, ये बी कह दें और ये सी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? 20, 80। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस? 20, 180। व्हाट इज ए के कोऑर्डिनेट मैंने 20, 80 ले लिए, सी के कोऑर्डिनेट 20, 180 आ गए। If I put y is equal to 4x here, it becomes 5x is equal to 200. X will be equal to 40. If x will be 40, it will be 160. Now यहाँ से आप vertex लिखेंगे, that is corner point A, B and C. 20, 80, 20, 180 and 40, 160. Z is equal to क्या है? 1000x प्लस 600y। तो Z ऑफ A की क्या वैल्यू आ जाएगी? 20,000 प्लस 48,000। मीन्स 68,000 रुपीज। जेड ऑफ बी कितना आ जाएगा? 20,000 1,08,000, that is 1,28,000 rupees. Z of C 40,000 plus 96,000, थाउजेंड्स तो आ ही जाएगा। सिक्स and 13, 1,36,000. It means profit is maximum when number of executive tickets are 40 and economy class ticket is 160 and the maximum collection is 1,36,000. तो उसने पूछा व्हाट इज मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आप कहेंगे 1,36,000। तो लिख सकते हैं आप फाइनल आंसर 40 टिकट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास and 160 tickets of economy class. Clear? And maximum profit is 1,36,000. मैंने फिर ग्राफ आपके बना दिए। ग्राफ पेपर्स पे बनाएंगे तो कैलकुलेशंस थोड़ी इजी रहती हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कैसे निकालनी है, या फिर आप रफ में बना सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है, बट आपको ग्राफ पेपर पे बनाना चाहिए स्केल की हेल्प से, क्योंकि आपकी लाइन सीधी नहीं आती। हम लोग तो सीधी फिर भी ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट स्केल्स, आपकी नहीं आएंगी। चलिए अब आपके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैं जो क्वेश्चंस हो चुके हैं उनको रब कर रहा हूं। Two godowns A and B have grain capacity 100 quintals and
50 क्विंटल्स। एक जो ग्रेन की कैपेसिटी है वो 100 क्विंटल्स की हैं, दूसरे की 50 क्विंटल्स हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज ए, दिस इज गोडाउन बी, दिस इज 100 क्विंटल, this is 50 quintal. The supply of 3 ration shops D, E and F. 3 ration shops हैं, 1, 2, 3. This is D, this is E and this is F. Whose requirements are 60 quintal, 50 quintal and 40 quintal. Its requirement is 60 quintal, then 50 quintals and then 40 quintals. ये इनकी requirements हैं। टोटल कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट सेम होती हैं, दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 150 है, ये भी 150। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन्स टू द शॉप्स आर गिवन। मीन ए टू डी में जाते हैं तो हम 6 रुपीज़ क्विंटल लेते हैं, ए टू ई में जाते हैं 3 रुपीज़ क्विंटल है, ए टू एफ में जाते हैं तो 2 रुपीज़ 50 पैसा, बी टू डी में जाएंगे 4 क्विंटल है, बी टू ई में 2 है, बी टू एफ में। ये इसकी रीडिंग है टेबल के पढ़ने की। क्लियर हो गया? लिख लीजिए, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्रेन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम गोडाउन ए टू डी बी एक्स एंड ए टू डी पे मैंने कितना ट्रांसपोर्ट किया वो मैं x ले लेता हूँ, ए टू ई पे मैंने कितना ट्रांसपोर्ट किया उसको y ले लेता हूँ, ए टू एफ में मैंने कितना ट्रांसपोर्ट किया इसको 100 माइनस x माइनस वाई ले लेता हूँ। ये तीनों एरोज पे मैंने लिख के आपको सिखा दिया। लिख लो, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स, let number of units of grain be transported from A to D is X quintals and number of units of grain be transported from A to E is Y quintals and A to F is 100 minus X minus Y. मतलब x क्विंटल आपने इधर भेज दिया, y क्विंटल उधर भेज दिया और 100 माइनस दिस क्विंटल इधर। अब a टू d में जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हैं यहां पे ₹6 पर क्विंटल है और a टू e में ₹3 पर क्विंटल है और a टू f में ₹2.5 पर क्विंटल है। इज इट क्लियर? अब आपने यहां से ये देखना है कि अगर x यूनिट इधर से इधर ट्रांसफर्ड हुए हैं तो इधर कितने यूनिट ट्रांसफर्ड होंगे? 60 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पे 60 से ज्यादा तो जाएंगे नहीं। इसको यहां पे कितने ट्रांसफर्ड होंगे? 50 माइनस वाई। इसको इधर कितने ट्रांसफर्ड होंगे?
40 माइनस ऑफ 100 माइनस x माइनस वाई, क्लियर? या इसको ऐसे कर सकते हैं 40 माइनस 60 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस वाई, क्योंकि जो इधर ट्रांसपोर्ट बात वही आनी चाहिए मेरी नज़रों में। फिर यहाँ पे हम 50 लेंगे, क्योंकि 50 में से बाकी के बचे हुए वहाँ दे दिए, या 40 में से जितने कम रह गए थे वो दे दिए, और मैंने दूसरे पहले लिखा था 40 माइनस ऑफ 100 माइनस एक्स माइनस वाई। देखो ये भी 60 आएगा, 120 110 में से 50 माइनस होगा, ये भी 60 आएगा। दोनों की बातें एक ही है, 40 में से ये माइनस कर दो या 50 में से ये दोनों ऐड करके माइनस कर दो, एक ही बात होती है। जैसे यहाँ पे आपने 50 था तो ये आपके लीनियर कांस्टेंट्स बन गए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके पास आएगा वो मिनिमम कॉस्ट आएगी। इनके रेट्स भी लिख लो। B टू D जाने में ₹4 है, B टू E जाने में ₹2 है, और B टू F जाने में ₹3 है। और मैं इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख रहा हूं x प्लस वाई माइनस 60। पहले मैं यहां से ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y प्लस 2.5 इंटू 100 माइनस x माइनस वाई प्लस 4 इंटू 60 माइनस x प्लस 2 इंटू 50 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। एक्स की टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, 6 माइनस 2.5 माइनस 4 प्लस 3, वाई की टर्म्स 3 कांस्टेंट टर्म्स 250 प्लस 240 प्लस 100 माइनस 180। 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 6.5 2.5x 6 माइनस 1.5y प्लस 410। ये 60 आ जाएगा, 310 प्लस दिस 410 मीन 2.5x प्लस 1.5। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, जिसको आपने कहना टू बी मिनिमम, टू बी मिनिमम।
बिकॉज ये आपकी कॉस्ट है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बन गए। लीनियर कांस्टेंट्स, पहला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 100 माइनस x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई माइनस 100 इज लेस देन इक्वल टू 0। 60 माइनस x ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन इक्वल टू 60। 50 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 50। x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6 लीनियर कांस्टेंट्स बनेंगे, सारे ग्रेटर देन 0 होंगे। ग्राफ इसका हम यहां बना लेते हैं, एनफ स्पेस है फॉर ग्राफ। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 आपको क्लियर है। ये पॉइंट आपका 100, 0, दिस पॉइंट विल बी 0, 100। दिस लाइन इज x प्लस वाई माइनस 100 इज लेस देन इक्वल टू 0। शेडेड पोर्शन नीचे की तरफ होगा, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। x इज 60, लेस देन 60 है, तो ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 60 की होगी। लेस देन आई मीन ओरिजिन साइड होगा। ये पॉइंट अगर जो आप 60 लेते हैं तो y 40 होगा, तो ये लाइन कम से कम y इज इक्वल टू 50 की आएगी, और पोर्शन नीचे की तरफ शेड होगा। क्लियर? ये पॉइंट 50 होगा और ये 60 होगा। अगला पॉइंट यहां से तो लाइन पास करेगी, लेकिन 60 ये होगा, तो ये लाइन इसके तो पैरेलल आएगी, लेकिन ऐसे आएगी। ये लाइन इसके पैरेलल आएगी। ग्रेटर देन 60 है मीन्स ऊपर की तरफ होगा, ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। मतलब ये लाइन मैंने आपको कहा कि पैरेलल जाएगी इस लाइन की, ये दिमाग में रख लेना। और ये पैरेलल तभी होगी जब आपका ग्राफ सेम होगा। फाइनल शेडेड पोर्शन आपका ये होगा। पॉइंट एक ए मिलेगा, एक बी, एक सी और एक डी, ये 4 पॉइंट मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपका 60, 0 मिलेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपका 60, 40 मिलेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सी 50, 50 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी y 50 है, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो y 50 लूंगा तो ये 10 मिलेगा। तो z ऑफ a देखिए यहां से क्या आएगा, 60, 0, 25/10 150 आएगा, प्लस 410 रुपीज 560। ये आपका जेड ऑफ ए आएगा। जेड ऑफ बी 60 पुट करेंगे तो 150, 40 पुट करेंगे तो 60 प्लस 410, दैट इज टोटल रुपीज इज 620। जेड ऑफ सी 50 पुट करेंगे 125, 75,
and 410, that is rupees 610. और Z ऑफ D 10 पुट करेंगे 25, 50 पुट करेंगे 75, that is 510. Now the transportation is minimum at D. Transportation is minimum at D and minimum cost is rupees 510. D means, आप आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको 10 क्विंटल्स फ्रॉम ए से 10 क्विंटल्स और 50 क्विंटल यहां से 50 क्विंटल्स, यहां से 0 क्विंटल, यहां से 40 क्विंटल्स और यहां से 0 क्विंटल्स, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशंस होंगी. लिखें फ्रॉम गोडाउन ए, फ्रॉम गोडाउन ए टेन क्विंटल्स then 50 quintals and 40 quintals will be supplied to depots D, E and F respectively. ठीक है. एंड फ्रॉम गोडाउन बी $50 क्विंटल्स, 0 क्विंटल्स एंड 0 क्विंटल्स विल बी सप्लाइड टू द शॉप D, E and F रिस्पेक्टिवली. तो ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी रहता है बट कैलकुलेशंस भी ठीक ठाक रहती हैं. इसी हिसाब से आप एग्जाम्पल्स कर लेंगे. और मैं ट्रांसपोर्टेशंस की ये मैंने जान के पूरा सम आपको कराया ताकि ट्रांसपोर्टेशंस की प्रॉब्लम्स, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें डरते हैं कि भी कैसे करनी है. क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहां से रब कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑयल कंपनी हैज डिपोज ए एंड बी. इसकी सिर्फ हम फिगर्स ही बनाएंगे. कैपेसिटी है 7000 लीटर्स एंड 10,000 लीटर्स. सेम फिगर्स ए एंड बी. ये डिपो ए है, ये बी है. इसकी कैपेसिटी 7000 लीटर की है और इसकी कैपेसिटी 4000 लीटर की है. ये 3 पेट्रोल पंप्स हैं, D,
E and F petrol pumps, capacity 4500 liter, 3000 liter and 3500 लीटर। रेट आपको ये दिया हुआ है, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स हैं, A to D, E, F and this. Assuming that the transportation cost of 10 liter of oil is rupees 1 per kilometer. मीन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 10 लीटर्स ऑफ ऑयल की 1 किलोमीटर्स है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो हम बाद में भी निकाल लेंगे, पहले हम उसी तरीके से सम करके बाद में हम कॉस्ट निकाल देंगे जो भी हमारे पास आएगी। वहां पे तो हमें मिनिमम कॉस्ट पर रुपीस में दी हुई थी, यहां कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सेम है वर्किंग। लेट डिपो ए ट्रांसपोर्ट X लीटर ऑफ पेट्रोल टू D and Y liters of to E and 7000 minus X minus Y liter to this। अब ये लाइन लिख सकते हैं, लेट द डिपो ए ट्रांसपोर्ट X लीटर ऑफ पेट्रोल टू द पेट्रोल पंप D, Y लीटर टू द पेट्रोल पंप E and 7000 minus X minus Y liter to F। From this side 4500 की हमारी रिक्वायरमेंट थी, 4500 माइनस X लीटर टू D, दिस इज 3000 लीटर माइनस Y, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं भेजना, जितना यहाँ चाहिए Y यहाँ से आ गया, रिमेनिंग यहाँ से। यहाँ से मैंने कहा था यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम 4000 लीटर में से ये 4500 माइनस X माइनस 3000 माइनस Y कर दें, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। एक तरीका तो ये है, और ऊपर से जितना आ गया कि 3500 में से जितना वहां चला गया बाकी हम यहां से भेज सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हम यहां से इसको ऐसे भी कर सकते थे, 35,000 माइनस 7,000 और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 3500, यहां से भी यही आएगा 75 माइनस 4000। मतलब आपने ये सोचना है कि इस डिपो पे तेल या तो 4000 में से दोनों माइनस हो जाएंगे, या 3500 में से ये माइनस हो जाएगा, वो यहां से जाएगा। ये इसको सिंप्लीफाई करके आया है। रेट देख लीजिए, A टू D के ₹7 है, A टू E में ₹6 है, और A टू F में ₹3 है। B टू D में ₹3 है, B टू E में ₹4 है, and this is ₹2। अभी ये पर 10 लीटर का ही निकलेगा Z इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 7x प्लस 6y प्लस 3 इंटू 7000 माइनस x माइनस y प्लस 3 इंटू 4500 माइनस x प्लस 4 इंटू 3000 माइनस y प्लस 2 इंटू x प्लस y
minus 3500. Next, z is equal to x common 7 minus 3 minus 3 plus 2, y 6 minus 3 minus 4 plus 2. Constant terms 21,000 plus 13,500 plus 12,000 माइनस 7,000. 5,000 ये आ जाएगा 26 में 26,000 6 3x plus y to be minimized. ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा. 3x प्लस वाई प्लस 39,500. लीनियर कांस्टेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 7,000 माइनस माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies x plus y minus 7,000 is less than equal to 0. 4,500 minus x greater than 0. It means x is less than equal to 4,500. 3,000 minus y greater than 0. Y is less than equal to 3,000. X plus y minus 3,500 is greater than 0. ये 6 लीनियर कांस्टेंट्स आ जाएंगे. फाइनली जो एंड में आपका आंसर आएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी, उसको 10 से डिवाइड कर देना. अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर पर किलोमीटर, मैं लास्ट टाइम लिख रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर पर 1 किलोमीटर आपके पास ये आनी चाहिए. ठीक है, तो देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर लीटर कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, कि जो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो पर लीटर की आएगी, और पर 10 किलोमीटर लेने के लिए मैंने 10 से डिवाइड कर दिया. पर लीटर पर किलोमीटर की आएगी, 10 के लिए मैंने इसको 10 से डिवाइड करके, क्योंकि ये जो कॉस्ट हमने निकाली है ये पर किलोमीटर पे पर लीटर पे ही चल रहा था, लेकिन वो 10 लीटर के 7 रुपए हैं, इसलिए 10 से डिवाइड कर दिया, इसलिए कॉस्ट कम कर दी मैंने. इज इट क्लियर? तो ये 10 हम यहां पे भी डिवाइड कर सकते थे. x लीटर्स है, 10 लीटर बनाने के लिए मैं इसको सीधा डिवाइडेड बाय 10 कर सकता था, लेकिन मैंने एंड में आंसर में डिवाइड करना बेटर समझा. तो ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स हो गई हैं. क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सिंपल हैं. ए फ्रूट ग्रोअर कैन 2 types of fertilizer in his garden. In his garden, brand P and brand Q
नंबर ऑफ बैग यूज ऑफ फर्टिलाइजर ब्रांड पी को आप एक्स ले लेंगे और नंबर ऑफ बैग यूज फर्टिलाइजर फॉर ब्रांड क्यू को वाई ले लेंगे। टेबल्स आपका बना हुआ है। अमाउंट इन किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटाश एंड क्लोरीन इन द बैग ऑफ ईच ब्रांड इज गिवन इन द टेबल। Test indicate that the garden need at least means greater than or less than mix आएंगे। at least phosphoric acid, at least potash and at most chlorine। क्लियर। द ग्रोअर वांट टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब जो यहाँ नाइट्रोजन है उसको आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लेना है, ठीक है। और अगले केस में 9th में नाइट्रोजन को आपने मैक्सिमम में लेना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दे दीजिए। ठीक है, एक 240 किलोग्राम है फास्फोरिक एसिड की और पोटाश की 270 है और क्लोरीन की 310 है। जो नाइट्रोजन है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। नाइट्रोजन इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। मीन जेड इज इक्वल टू ब्रांड पी को मैंने x kg बैग लिए 3x और उसके मैंने y kg बैग लिए 3, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। टू बी मिनिमाइज्ड इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड टू बी मैक्सिमाइज्ड इन क्वेश्चन नंबर 9। लीनियर कांस्टेंट्स क्या बनेंगे? x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 240, एट लीस्ट है। देख लो फास्फोरिक एसिड के साथ एट लीस्ट है, पोटाश के साथ भी एट लीस्ट है। पोटाश 3 प्लस 1.5 ऑफ y इज 270, बट 1.5x प्लस 2y इज लेस देन 310 बिकॉज ये एट मोस्ट है। क्लियर। अब बाकी का काम आप कर लेना। नाइट्रोजन मैंने इसमें कहा है कि आपका वो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ डॉल्स। मैंने लिख दिया लेट द नंबर ऑफ डॉल ऑफ टाइप ए बी एक्स, नंबर ऑफ डॉल ऑफ टाइप बी बी वाई। Market test and available resources have indicated that the combined production level should not exceed 1200 dolls per week. Combined production cannot exceed 1200 dolls per week, mean x plus y is less than 1200. This is one linear constant. आगे है डिमांड फॉर द डोल्स। Demand of dolls of type B is at most half that of the type A. At most mean less than, half का मतलब 1/2, type A mean x, y is less than equal to 1/2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 2y is less than x, so this implies x minus 2y is greater than equal to 0। Next, production level of doll of A type can exceed 3 times the production level of the doll of other type by at most 600. At most means again less than, type A means x, 3 times other 3y, कितनी बढ़ सकती हैं? 600 से।
तो x इज लेस देन इक्वल टू 3y प्लस 600। इसको भी आप सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 600। ये नेक्स्ट लीनियर कांस्टेंट आ जाएगा। बस आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डोल ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ द अदर डोल, कि हम जो प्रोडक्शन लेवल डोल ए का बढ़ा सकते हैं टाइप 3 टाइम्स अदर टाइप बी से 3 गुना ज़्यादा कर सकते हैं, कितने जोर लगा के, बाय 600 यूनिट। मीन x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3y प्लस 600। कितनी भी हम प्रोडक्शन बढ़ा लें, हम 3y प्लस 600 से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। आगे प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट डोल पे ₹12 है, अनदर पे 16 है, तो इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। तो ये एक x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये आपके लीनियर कांस्टेंट आ जाएंगे। इसका भी ग्राफ आप खुद ही बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग्स एंड आई हैव कवर्ड all the questions related to this linear programming.